Good morning, student. I welcome you on the filler form. Once again, good morning. And today, actually, I am taking your class in the morning session. Okay, so please join the class, student. Good morning. And once again, I welcome you on the filler form app. Student, our filler form app is dedicated in the field of UGC NET JRF. And if you want to prepare, if you want to join us, then we are on different social media app like Instagram, WhatsApp, and Telegram. Student, you can join us and you can uh, purchase our course. So here are our course. You can purchase our paper 1, paper 2, and paper 3. Paper 1, paper 2 both are single. You can purchase our course. Okay, good morning. Yes, good morning. Thank you. And you will get notes, previous year question paper, and 100 plus mock test for paper 1 and paper 2 in this session. Okay. So you can purchase, you can buy our course. Audio, video, everything is clear? Yes or no? Thank you. And once again, I would like to tell you, student, if you want to get 10% off, then you can use my code DISENG10. And if your friend, anybody want to take course, purchase course, then you can share my code. Okay. And here is about me. Actually, I have already qualified UGC NET and right now pursuing PhD. I have been awarded by the Government of India and Government of Madhya Pradesh. I received a state and national award. And as far as teaching experience is concerned, so student, I have been teaching for last 15 years. And I used to be the ex-government guest faculty in college. Okay. And so let us start today's class. Okay. Student, screen as well as all the audio, video, everything is clear. Please confirm me and then we shall go ahead. Okay. Once again, student, I would like to tell you audio, video, everything is clear. Yes or no? Everything is clear. See. Okay, yes. So, student, yesterday we discussed about Neeraj C. Chaudhary. Okay, Neeraj Chandra Chaudhary, and we have discussed about Neeraj Chandra Chaudhary that he was born in 1897 and died in 1999. Okay, basically he was born in Kishorganj, and he was a Bengali English writer and man of letters. So, as I told you, student, नीरज सी चौधरी जो है उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर थे शरद चंद्र बोस है ना उन के पर्सनल सेक्रेटरी रहे अपॉइंट किए गए और उसके बाद में उनको जो है जब शरद चंद्र बोस के पर्सनल सेक्रेटरी रहने के दौरान वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काम करते हुए उनको महात्मा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस से मिलने का अवसर मिला और ऑल इंडिया रेडियो है ना इन सब में उन्होंने काम किया है उनका जो फेमस वर्क था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन Indian is one of the most popular ठीक है work and he received साहित्य अकादमी अवार्ड in 1975 ठीक है इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैक्स मुलर के बारे में को लेकर के तो यू हैव डिस्कस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी और then I told you about Neeraj C. Chaudhary. Here are some major works. The autobiography of a non-Indian. It is one of the most famous work written by नीरज चंद्र चौधरी ठीक है तो यू टू स्टडी इट आपको पढ़ना है इसके बारे में एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शशि देशपांडे born in 1938 and just before in 2016 she died ठीक है तो आप देख सकते हैं बेसिकली शी वाज अवार्ड विनिंग इंडियन नॉवेलिस्ट एंड एज फार एज साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो दैट लॉन्ग साइलेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क जैसे भी हमको समय रहेगा हम लोग इन जो मेजर वर्क से साहित्य अकादमिक अवार्ड विनिंग वर्क से उसके ऊपर चर्चा करेंगे स्टूडेंट है ना अवर यूनिट 6 यानी फर्स्ट यूनिट ही अभी चल रही है तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा एक नेक्स्ट एक एटलीस्ट 1 और 2 क्लास में हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर लगभग अभी हम लोग वाइंड अप करेंगे देन वी विल स्टार्ट फर्स्ट 4 यूनिट एंड कंबाइन है ना
हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट 4 यूनिट एंड द मेजर यूनिट्स आर देयर एंड वी विल डिस्कस द होल इंग्लिश लिटरेचर. ओके. एंड नाउ as far as Shashi Deshpande is concerned, so she was born in Karnataka and known as daughter of Kannada. ठीक है, known as daughter of Kannada. और उसके बाद भी इनका जो फर्स्ट नॉवेल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर in 1980, it was famous work, and she received Padma Shri, and her, you can say, shadow play was you can say shortlisted for the literary prize in 2014. ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट. मेजर you can say जो अचीवमेंट्स उनको ध्यान रखना है. But she returned her साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2015, as I told you. उन्होंने रिटर्न कर दिया था, ये हम जानते हैं, और कुछ इश्यू हुए हैं, है ना, इंटॉलरेंस को लेकर के, तो ये ध्यान रखना है. Here are some major works written by Shashi Deshpande. The dark holds no terror. If I die today, come up and be dead. That long silence. One of the most famous novel written by Shashi Deshpande, The Unavoidable Silence of an Indian Woman. ठीक है. Small remedies in the country of deceit, roots and shadows. So and one thing I told, let me tell you student, Shashi Deshpande जो है चिल्ड्रन बुक्स भी इन्होंने लिखी है. 4 चिल्ड्रन बुक. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ठीक है, 4 चिल्ड्रन बुक है. जो है समर ऑफ एडवेंचर, द हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस, द नयनतारा, ये नारायणपुर इंसिडेंट. स्टूडेंट, आई बिलीव इन रिवीजन. आई बिलीव इन रिवीजन. विदाउट रिवीजन देयर इज नो डिवीजन. ओके, रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना. And we discussed Anita Majumdar Desai. She was an Indian novelist. ठीक है. She also shortlisted for Booker Prize or awarded Sahitya Academy Award in 1978 for her novel Fire and Mountain. Remember, मसूरी में इनका जन्म हुआ है. ठीक है. और हस्बैंड जो देसाई, अश्विन देसाई, हस्बैंड का नाम था अश्विन देसाई. उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, बिटवीन इटर्नीज आइडियाज ऑन लाइफ एंड कॉस्मोस. फिर हम बात करें, शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल क्राई द पीकॉक 1963 में उन्होंने पब्लिश किया है. शी कंसिडर्स क्लियर लाइट ऑफ द डे. शी कंसिडर्स क्लियर लाइट ऑफ द डे 1986 में उन्होंने ये क्लियर लाइट ऑफ द डे को जो है एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कंसिडर किया था अनीता देसाई. ठीक है. और उसके बाद में इन 1984 पब्लिश्ड इन कस्टडी अबाउट एन उर्दू पोएट. उर्दू पोएट यानी जो उर्दू पोएट्री या जो राइटिंग है उर्दू में, उसका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा था, कहीं ना कहीं उसका कमी आ रही थी, तो उसको लेकर के इन्होंने लिखा है. हर नॉवेल द जिगजैग वे, ये जिगजैग वे भी इनका एक नॉवेल है और इनके शॉर्ट स्टोरीज है. द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा. एंड देन अवार्ड की बात करें तो वंस अगेन लेट अस रिवाइज. अनीता देसाई अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड 1978 फॉर फायर एंड माउंटेन. शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज क्लियर ऑफ द डे के लिए, इन कस्टडी, फास्टिंग फिस्टिंग, और फेलोशिप इनको मिली है साहित्य अकादमी की. और पद्म भूषण स्टूडेंट, है ना, पद्म भूषण. आप देखिए, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड. फर्स्ट है भारत रत्न, सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण, और फोर्थ है पद्मश्री. रिमेंबर, so she received a Padma Bhushan in 2014. Major works are, once again you can revise. ठीक है, पढ़ सकते हैं. द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरिंग, द जिगजैग वे, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, फास्टिंग फिस्टिंग, जर्नी टू इथाका, है ना, ये सब है. अनीता देसाई का जो वर्क है इन कस्टडी, है ना, यहाँ पर हमने देखा था स्टूडेंट, ये जो इन कस्टडी है, ठीक है, तो ये इन कस्टडी जो है उर्दू डिक्लाइनेशन को लेकर के, उर्दू लैंग्वेज या पोएट्री को जो डिक्लाइनेशन हो रहा है उसको लेकर के लिखा गया है. देवान शर्मा इसके मेन कैरेक्टर है. ये कुछ और कैरेक्टर है, नूर, उर्दू पोएट मुराद सिद्दीकी. ठीक है. इनका एक और वर्क है द विलेज बाय द सी. द विलेज बाय द सी, मेन कैरेक्टर आप यहाँ पर लीला है और हरि है, देख सकते हैं. विलेज बाय द सी में लीला और हरि. ठीक है. गॉट इट स्टूडेंट. देन हम बात करें अनीता देसाई की, तो क्लियर लाइट ऑफ द डे, इसको पढ़ लेना आपने. गेम्स एट ट्विलाइट, कैट ऑन अ हाउस बोट, द पीकॉक गार्डन, बाय बाय ब्लैकबर्ड, दीज आर सम वर्क्स. देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्राई द पीकॉक, है ना. क्राई द पीकॉक के बारे में हमने चर्चा करी थी. माया इसका मेजर कैरेक्टर है और गौतम. ठीक है. माया, यू कैन से शी इज, यू कैन से she received a lot of love from her father, but when she married to Gautam, she did not you can say get anything else. So she was, you can say, she was so frustrated, irritated. ठीक है.
तो माया को अपने पिता से अपने घर में बहुत प्यार मिलता है, सारी उसकी उम्मीदें इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन जब गौतम से शादी हो जाती है एंड देयर इज अ गैप, है ना, इन दोनों के बीच में एज गैप भी होती है। गौतम बहुत गंभीर व्यक्ति है, जबकि इसके विपरीत जो माया है वो नेचर से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, एनिमल से बहुत प्रेम करती है। लेकिन गौतम इसके विपरीत होता है, कोई सेंसिटिव नहीं है, इमोशनल नहीं है ना। तो जो है धीरे 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 जो है क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक यानी अंदर ही अंदर वो अंदर ही अंदर उसका मन भावनात्मक रूप से वो रोने लगती है, अंदर ही अंदर कराहती है, पीड़ित होती है। तो ये नॉवेल जो है एक उस महिला के बारे में एक सिंबल है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती, अंदर ही अंदर पीड़ा सहन करते रहती है, उसके बारे में। गॉट इट। और बाद में द मेन थीम ऑफ द नॉवेल इज मैरिटल डिस्कॉर्ड्स एंड एलाइनेशन, है ना, एकाकीपन। अब देखिए स्टूडेंट, इसलिए वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, देयर शुड बी कन्वर्सेशन बिटवीन टू, है ना, एनीथिंग एल्स, कोई भी कहीं पर भी है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपस में बातचीत होना चाहिए। साहित्य हमें यही जीना सिखाता है। एक ऐसा इंसिडेंट हमने क्या पढ़ा और हमने क्या सबक सीखा, यही जिंदगी है स्टूडेंट। वन थिंग लेट मी टेल यू, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको यूजीसी नेट जो है जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बिल्कुल वो तो है हमारा एम। लेकिन हमें जिंदगी के लिए कुछ एटीट्यूड, कुछ सबक, कुछ थॉट प्रोसेस भी सीखना है। वी हैव टू लर्न मेनी मोर थिंग्स फॉर द लाइफ। अल्टीमेट एम दैट इज, है ना, एटीट्यूड। वन थिंग लेट मी क्लियर, आप जो है आप अपनी सोच को ऐसी बनाएं कि जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, द लिटरेचर विच वी आर, यू कैन से लर्निंग, द लिटरेचर दैट वी आर स्टडिंग, दैट इज फॉर अवर, यू कैन से लाइफ आल्सो, है ना, हमारे जिंदगी के लिए भी है। तो जो है आपको ये ध्यान रखना है। और द बुक वन द साहित्य, ये जो इनका जो ये जो क्राई द पीकॉक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन जो माया है और ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं क्राई द पीकॉक के बारे में। यू कैन गो थ्रू द नॉवल स्टूडेंट। देन ये आप लास्ट की लाइनें जरूर आप याद रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। टॉर्चर एंड गाइड, dread, imprisonment, these were the four walls of my private hell, and one that no one could survive in long, death was certain. ठीक है, so these are the lines, these lines have been quoted by Anita Desai, Arun, not quoted, written, है ना। And then we discussed now today, so let us discuss अरुंधति राय, है ना। चलो आज हम चर्चा करेंगे अरुंधति राय के बारे में। गॉट इट स्टूडेंट, यस और नो? चलिए, सो एज फार एज अरुंधति राय इज कंसर्न स्टूडेंट, है ना, बहुत फेमस रहे हैं और थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी रहे इनके नॉवेल्स। शी वाज बोर्न, यू कैन से इन 1959, 1959 में इनका जन्म हुआ। अरुंधति राय, पूरा नाम क्या है? सुजेना अरुंधति राय, फुल नेम सुजेना अरुंधति रॉय। शी वाज एन इंडियन राइटर एंड शी वाज नोन, है ना, बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, विच वन द मेन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997। गॉट इट। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये जो है मेन बुकर प्राइज विनिंग नॉवेल है, रिटन बाय अरुंधति रॉय, एंड दिस नॉवेल you can say won the prize in 1997. Voice is clear or not? Yes, everything is fine. ठीक है, okay. And yesterday have you received a PDF etc? Yes or no? PDF आपको मिल गई? Okay. A political activist involved in human rights. Actually, Arundhati Ray was a political activist, also राजनीतिक activist भी रही है, and she was involved in human rights. ठीक है, मानवाधिकारों को लेकर, एनवायरमेंटल केसेस, पर्यावरण और मानव अधिकारों को लेकर भी बहुत सक्रिय रहे हैं अरुंधति राय जी। ठीक है, और अभी भी आप देख सकते हैं कई बार आप इनको बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करते हैं, मूवमेंट होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इनको मिला है वो मिला है इन 2006 में। इन 2006 शी रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड शी लेबल्ड एज अ डायस्पोरिक राइटर। ठीक है, डायस्पोरिक राइटर के रूप में इनको लेबल किया जाता है। देखते हैं यहां पर इनके मेजर वर्क्स की हम बात करें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। थोड़ा सा हम ब्रीफली लेट अस डिस्कस। ठीक है, जो बड़े वर्क्स हैं उनको यहीं पर हम चर्चा करेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अब सोचिए,
है ना, गॉड ऑफ स्मॉल यानी स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें के भगवान कह लो आप, 1997 में पब्लिश हुआ है। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो जिंदगी में बड़ा इफेक्ट डालती है। देर इज सेइंग, है ना, देर इज अ कोटेशन इन इंडियन कल्चर, देख, है ना, क्या है, तिल का ताड़ राई का पहाड़, ये सार नो, तिल का ताड़ राई का पहाड़ आपने सुना होगा। सो स्टूडेंट ऐसे ही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं हमारी जिंदगी में कितना इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो उस बारे में इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड इट्स लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द ट्विन्स वर एट द हार्ट ऑफ इट। इसमें आपको ट्विन्स मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको ट्विन्स मिलेंगे, दो भाई बहन, है ना, उनके बारे में ये है किस तरीके से जो एक ट्रेजेडी होती है उनके साथ में और किस तरीके से उसका लास्टिंग या एंड होता है। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ द स्मॉल थिंग, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ द स्मॉल थिंग्स इफेक्ट पीपल्स बिहेवियर एंड देयर लाइव्स, यानी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो कैसे लोगों के बिहेवियर को और उनकी जिंदगी को अफेक्ट करती है। दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस बुक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, रिटन बाय अरुंधति रॉय। Actually, student, the story is set in, you can say Ayamanan. Yeah, Ayamanan, it was in Kerala. Yeah, it is in Kerala. Sorry, Ayamanan. वहां पर ये स्टोरी सेट होती है। अब यहाँ पर देखिए, फ्रेटरनल फ्रेटरनल ट्विंस कौन कौन है, राहेल और स्थापन या स्थाप शॉर्ट में कह लो, है ना, ये राहेल सिस्टर है। ये दोनों क्या है, 7 years ओल्ड इन 1969। देखिए ये जो स्टोरी पूरी चलती है 1969 टू 1993, ठीक है, इसी के बीच में इर्द गिर्द ये पूरा चलता है स्टोरी। तो ये ट्विंस है राहेल और स्थपान, ठीक है, जो 7 साल के हैं। अब यहाँ पर क्या है, अम्मू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, अम्मू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाबा जो है इज राहेल और एथास फादर हु इज डाइवोर्स्ड बाय अम्मू, है ना, ये अम्मू के साथ में ही रहते हैं राहेल और स्थापन, ठीक है, और डाइवोर्स्ड बाय अम्मू व्हेन द चिल्ड्रन वर वेरी यंग, ठीक है, जब वो बच्चे थे 7 साल के हैं, इसी समय क्या है, बाबा और अम्मू का डाइवोर्स हो जाता है और जो राहेल और एस्था है वो अम्मू के साथ ही रहते हैं, ठीक है। द स्टोरी इंटर्स इन 1990। अब देखिए यहाँ पर जब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगभग 79 69 79 89, ठीक है, 90, यानी लगभग 30 साल के बाद में, 30 या 33 ईयर्स, है ना, 30 से 31 साल के बाद में, सॉरी 31 ईयर्स के बाद में स्टोरी वापस फिर से रिकाउंट होती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे द स्टोरी इंटर्स इन 1990 एज द यंग वुमन राहेल रिटर्न्स टू हर विलेज टू बी रीयूनाइटेड विद हर ट्विन्स ब्रदर स्थापन। एक्चुअल में होता क्या है, ये राहेल की शादी हो जाती है, ये चले जाती है, लेकिन उसको अपने हस्बैंड के साथ में वो प्यार, वो प्रेम नहीं मिलता है जो उसको अपने घर में मिलता है या अपने भाई एस्था से मिलता है, ठीक है। तो फाइनली वो जो है वापस बैक आती है अपने घर पे, गांव में, और जो है वो फिर रीयूनाइटेड यानी अपने भाई से मिलती है एस्था से एट द एज ऑफ 31, ठीक है, 31 की एज में, यानी लगभग बहुत कुछ बदल चुका है ना। आप सोचिए कोई व्यक्ति जो है एक बार लंबे समय के बाद में लौट के आ रहा है, 31 साल के बाद में अपने गांव और अपने भाई से मिल रहा है, तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। द ट्विंस यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ मी एंड अस, ठीक है, या तो मी या अस अपने आप के लिए वो यूज करते थे। अब यहाँ पर और हम देखें घटना, कहानी और थोड़ी आगे बढ़ती है। द डे बिफोर मार्गरेट एंड सोफिया अराइव्ड, ठीक है, द डे बिफोर मार्गरेट एंड सोफिया अराइव्ड द फैमिली विजिट्स अ थिएटर टू सी द साउंड ऑफ म्यूजिक वेयर एस्था इज molested by the orange drink लेमन ड्रिंक मैन, अ बेवरेज वेंडर, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपको बता दें स्टूडेंट, मार्गरेट और सोफिया भी वहां पर आए हुए हैं और ये लोग एक फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वेलुथा है स्टूडेंट, इज एन अनटचेबल दलित, ये इनसे मिलना होता है। किसी कारण से क्या होता है कि ये जो एस्था है और जो
अब यहाँ देखिए, हिज फैमिली हैज बीन वर्किंग फॉर द आईटी फैमिली फॉर जनरेशंस. Rahel and Esther form an unlikely bond with Velutha and come to love him despite his untouchable status. थोड़ा सा यहाँ पर आप एक बार पूरा देख लीजिए. When Ammu's relation with Velutha, अब देखिए क्या होता है कि जो राहेल और राहेल और एस्था है, एक्चुअल में वो ट्विंस ब्रदर हैं, लेकिन बाद में भाई थोड़ा सा आगे बढ़े. बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू, our society has, you can say, decided some norms for the you can to love, है ना भाई. हम किसी से कितना प्रेम करें और कितना करें, किससे करें, ये सब हमारे यहाँ पर जो है क्या है, मतलब our society has already decided the norms, settled the norms, नियम पहले ही बने हुए हैं, ठीक है. लेकिन जो यहाँ पर राहेल है, वो अपने रियल प्रेम को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसको वो प्रेम नहीं मिलता है. वो प्रेम उसको अपने भाई एस्था में दिखाई देता है. बट एज यू नो स्टूडेंट, देयर इज यू कैन से रेस्ट्रिक्शंस to have relation with between two brother and between brother and sisters. There is strongly restrictions in Indian culture, student, you know very well. There is ना, there is, you know, restricted. So स्टूडेंट यहाँ पर लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं बाद में, ये रिलेशन जो है क्या है, एक्सेप्ट नहीं होते हैं. तो जो माँ अपने एस्था और राहेल, वो भाग के कहीं दूसरे फार्म हाउस में चले जाते हैं जहां पर वेलुथा भी होता है. बाद में पता चलता है कि राहेल और एस्था जो है वो भागकर वेलुथा के पास चले गए हैं. तो वेलुथा जो है अनटचेबल है, एक दलित बॉय है. जब उसकी माता जी को पता चलता है कि इसको, अम्मू को, कि वेलुथा के साथ में वो दोनों हैं, when Ammu's relation with Velutha is discovered, Ammu is locked in her room and Velutha is banished. ठीक है, ये अम्मू भी जो है वेलुथा से कहीं ना कहीं रिलेशन में है. तो बाद में जो है इसको फंसाने के लिए, किसको, वेलुथा जो दलित बॉय है उसको फंसाने के लिए अम्मू एक कहानी बनाती है. हालांकि यहाँ पर इसी बीच में स्टूडेंट, ये जो सोफिया, इसकी डेथ हो जाती है ना, इसकी डेथ हो जाती है. तो इसकी डेथ का इल्जाम जो है ये वेलुथा पे लगा देते हैं, है ना. पुलिस वाले को भेजती है अम्मू, और वेलुथा पर इल्जाम लगाती है कि सोफिया की डेथ भी इसने की, और ये जो राहेल और जो एस्था, ये दोनों को इन्होंने किडनैप किया हुआ है, वेलुथा ने किडनैप किया हुआ है. पुलिस जाती है, वेलुथा को बहुत बुरी तरीके से पीटती है, और वेलुथा की डेथ हो जाती है. लेकिन बाद में फिर वेलुथा को जो है, यू कैन से, पुलिस को जो है ये पता चल जाता है कि वेलुथा एक्चुअल में जो सही था, अम्मू ने झूठ बोला है. तो इस तरीके से ये फाइनली जो है, in her age, Ammu blames the twins for her misfortune and calls them millstone around her neck. ठीक है, इस तरीके से ये ब्लेम करती है कि इन्हीं के कारण जो है वेलुथा और या जो सोफिया, इनकी डेथ हुई है. तो इस तरीके से फाइनली जो है, आपको लास्ट में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, राहेल जो एस्था है, जो ब्रदर सिस्टर है, दे बी, यू कैन से, दे एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप. ठीक है. And basically in our society, in Indian culture, there is strongly restrictions and relations between brother and sisters. But in this novel, so ये controversial novel है, ठीक है. So in India it is not possible, but ये controversial novel है. तो इस तरीके से, तो इसमें बाद में बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन इसी नॉवेल के लिए उनको जो है, आपको जो है अवार्ड भी मिलता है, हमने देखा है. ठीक है. अब यहाँ पर बात करें स्टूडेंट कुछ और वर्क्स की, रिटन बाय अरुंधति रॉय. सो द एंड ऑफ द इमेजिनेशन, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, वार इज पीस, द ग्रेटर कॉमन ऑफ गॉड, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स. ये सारी चीजें आपको, इसके कुछ वर्क्स आप पढ़ सकते हैं. देन now one of the famous writer, one of the most famous writer, Ruskin Bond. Let us discuss about Ruskin Bond, student. रस्किन बॉन्ड के बारे में हम बात करें, 1934 में इनका जन्म हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हैं, स्टिल ही वाज अलाइव. स्टूडेंट, आप सोचिए, बहुत लंबी उम्र है, आप देख सकते हैं. ऑर्फन है ये. रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. देखिए, इंडियन ऑथर है, ब्रिटिश डिसेंट है ना, आप कह सकते हैं. और 1934 यानी ही वाज बोर्न, है ना, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सॉरी प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले इनका जन्म हुआ है. ब्रिटिश डिसेंट है ना, ब्रिटेन में है, लेकिन ये इंडियन ऑथर इसलिए है क्योंकि बेसिकली
ही वॉज बोर्न इन हिमाचल प्रदेश, देहरादून में इनका बचपन बीता है ना, देहरादून में इनका बचपन बीता है, हम देखेंगे। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिम हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। बच्चों के जो है ज्यादातर जो है रस्किन बॉन्ड बच्चों के राइटिंग्स, बच्चों से संबंधित राइटिंग्स लिखते रहे हैं, और इनको जो है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, पहचान दी है, या इनको तारीफ की है। ठीक है, तो चिल्ड्रन से संबंधित वर्क ज्यादातर लिखे हैं इन्होंने। इनका एक फेमस कहीं ना कहीं आगे आएगा रस्टी, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1992, है ना। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये देहरादून, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग है, और इनका जो वर्क है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून, ये देहरा सॉरी, तो जो है उसको लेकर के ये अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं इस पब्लिश्ड वर्क्स इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में वर्क्स पब्लिश हुआ है। इट कंटेन्स 14 स्टोरीज, 14 स्टोरीज है इसमें, है ना, ये ध्यान रखना है। पद्मश्री इनको मिला है 1999 में, और पद्म भूषण 2014 है। पद्म भूषण ही रिसीव्ड, रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड पद्म भूषण। ब्रिटिश डिसेंट इसलिए है कि अभी वो ब्रिटेन में ही है ना, ही वाज नॉट इन इंडिया, बट एक्चुअली ही राइट्स अबाउट इंडिया, है ना, ही राइट्स अबाउट इंडिया, उनका जो बचपन बीता है इस तरीके से। बॉन्ड सेड, वो कहते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, मैंने इस जब ये लाइन को पढ़ा, आई रोट इन माई बुक, मेरी कॉपी के जो मेरी जो डायरीज है, आई राइट, है ना, आई मेंटेन पर्सनल डायरीज, आई हैव रिटन दिस कोटेशन स्टूडेंट, बहुत प्यारा कोटेशन सेड बाय रस्किन बॉन्ड, है ना। एक्चुअली आई हैव वन हैबिट दैट आई राइट, if I feel that there is important quotation, there is important line, I write that particular quotation or lines, है ना, in front of in front page of my books, on front page of my books. Got it student? आप भी ये कर सकते हैं। पहले समझते हैं क्या कह रहे हो। The past is always with us, जो past है वो हमेशा हमारे साथ है, for it fits the present। अपन बोलते ना, जैसे कहा गया है हमारे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करनी हुई है वो पास्ट में हुई है, भरनी क्या है, प्रेजेंट, यानी जो पास्ट हमारे साथ हमेशा रहता है। आज आप जो कुछ भी हो, एक बार मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट, वंस अगेन कंफर्म मी माय वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो। बहुत शानदार बात आपको कहने जा रहा हूं, एक बार यस, वॉइस, स्क्रीन, वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर, tell me, then we will move ahead. Yes, please reply fast. Okay, so student, here you can see past is always with us, for it fits the present। आज ही अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जहां पर भी है इस लाइन को लिख लेना। दिस लाइन इज वेरी मोटिवेटिंग, दिस लाइन यू नो, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्रेट टीचिंग है। ये कह रहे हैं कि पास्ट हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि ये प्रेजेंट को फीड करता है, प्रेजेंट को है, यानी आज का प्रेजेंट का, वर्तमान का निर्माण करता है हमारा पास्ट। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूं, आप जो कुछ भी है स्टूडेंट, ये हमारे पास्ट के कारण है। हमने पास्ट में जो बीज बोए थे, पास्ट में जो हमने कर्म किया था, उसी कर्म के कारण आज हम जो भी हैं। पास्ट में आपने आफ्टर 12th यू टुक एडमिशन इन बीए इंग्लिश लिटरेचर, या जो भी है, यू टुक एडमिशन इन एमए इंग्लिश लिटरेचर, एंड यू आर एमए इन इंग्लिश, एंड नाउ यू आर परस्यूइंग फॉर नेट जेआरएफ। सो जो भी आपने पास्ट में किया था वो आपका प्रेजेंट बनता चला जा रहा है। आज मैं जो कुछ कर रहा हूं वो हमारा आने वाला प्रेजेंट होगा, आप कह सकते हैं फ्यूचर, लेकिन वो प्रेजेंट में ही होगा। तो कहने का मतलब इसलिए है कि प्रेजेंट को बहुत अच्छे से हमें आज को हम संभालेंगे, आज को व्यवस्थित करेंगे, तो हमारा आने वाला फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा, वो बेहतर होगा।
स्टूडेंट एक बुक है, उस बुक में कोटेशन लिखा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सुनिए, लिसन केयरफुली। उस कोटेशन लिखा हुआ है, वॉइस इज क्लियर ना, एक वन रिप्लाई आया है। वहां कोटेशन लिखा हुआ है कि यदि आप आज भी वही करते हो जो अब तक करते आए हैं, तो आपको आगे वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। यदि आप आज भी वही करते हैं जो अब तक करते आए हैं, तो आपको आगे वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ नया मिले, कुछ नया हासिल हो, तो आपको वो करना पड़ेगा। या आपको चाहते हैं कि आपको कुछ नया मिले, नया हासिल हो, यानी आपको वो मिले जो आपको अब तक नहीं मिला है स्टूडेंट, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपको आज मिल रहा है, आपको चाहते कुछ नया मिले, तो आपको नया करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। क्या नहीं किया है? आपने अभी तक सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की है, आपको करना पड़ेगी। आपने अभी तक एक व्यवस्थित तरीके से आपने नेट जेआरएफ की तैयारी नहीं करी है, करना पड़ेगा। आपने पढ़ाई के लिए व्यवस्थित सीटिंग नहीं करे, पर डे कंसिस्टेंटली आपने स्टडी नहीं करी है, आपको करना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ हासिल करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, कीमत अदा करना पड़ेगी स्टूडेंट। हमें हर चीज की कीमत अदा करना पड़ती है। हमें टाइम के रूप में हो सकती है, सेक्रीफाइस के रूप में हो सकती है, परिश्रम के रूप में हो सकती है, डेडिकेशन के रूप में हो सकती है, ये कीमत किसी भी रूप में हो सकती है हमारी जिंदगी को जो है बड़ा बनाने के लिए, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। गॉट इट स्टूडेंट? यस, एग्री और नॉट? कितनी प्यारी बात कही है। द पास्ट इज ऑलवेज विद अस फॉर इट फिट्स द प्रेजेंट। फॉर का मतलब यहां पर क्योंकि है स्टूडेंट, है ना। ये फॉर कभी कभी बिकॉज के रूप में भी यूज होता है, अगर आप शायद जानते हो। ठीक है, बिकॉज। अब आगे हम बढ़े, लेट अस मूव अहेड। बॉन्ड्स अ फाइट ऑफ पीजेंट्स, इनका जो फाइट ऑफ पीजेंट्स नॉवेल है, सेट इन 1857, अबाउट रुथ लेब्राडोर एंड हर फैमिली ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, इज अडॉप्टेड इनटू द फिल्म जुनून। एक फिल्म आई थी जुनून, उस फिल्म जो जो फिल्म आई थी, ये इनके नॉवेल ऑफ फाइट ऑफ पीजेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और ये नॉवेल जो है 1857 के बैकग्राउंड के लेकर सेट किया गया है। कुछ और वर्क्स की बात करें, द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, इसके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है स्टूडेंट 2005 में, 2005 में इसके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है। द नाइट ट्रेन एट जेवली एंड अदर स्टोरीज, द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, अ फ्लाइट ऑफ पीजेंट्स, है ना, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, और स्टूडेंट वन ऑफ मोस्ट आउट ऑफ डार्कनेस। एक और इनका वर्क है स्टूडेंट, हियर आई वुड लाइक टू राइट डाउन इट, एक और वर्क है इनका, द आईज हैव इट। स्टूडेंट बहुत प्यारी शॉर्ट स्टोरी है, 2 से 3 पेज की, द आईज हैव इट स्टूडेंट। इसमें बहुत ही मार्मिक तरीके से बहुत प्यारा, मैंने कहा ना, लिटरेचर जीना सिखाता है स्टूडेंट, हमारे एटीट्यूड को डेवलप करता है। ठीक है, द आईज हैव इट, इसमें शॉर्ट में आपको बताऊं कि एक कैरेक्टर है, लड़का है, बस में बैठ के कहीं जा रहा है, और वो जो है ब्लाइंड होता है, देख नहीं पाता है, और वो जो है लेकिन गॉगल्स पहना हुआ है, और वो पास में एक लड़की बैठी होती है, गर्ल, उससे ऐसे बात करता है। लड़की कुछ उससे सवाल पूछती है, जवाब देती है, लड़का बात कर रहा है, वो लड़का वो इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे वो देखता है उसको, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनता है, हर बात का बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है, वो ऐसा अपीयरेंस करता है कि वो ब्लाइंड नहीं है। बाद में आश्चर्य की बात यह है स्टूडेंट, इस स्टोरी में द आईज हैव इट में, अब आश्चर्य करोगे, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। जो लड़की जो सामने बात कर रही है उस लड़के से, आप जानकर आश्चर्य होंगे, वो लड़की भी ब्लाइंड है, और दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दोनों ब्लाइंड नहीं है। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एक थोड़ा सा वो व्यंग्य है, सटायर है, कि हमारा देखने का एटीट्यूड अलग होता है स्टूडेंट। लोगों के पास में आंखें होने के बावजूद वो आसपास की दुनिया को वैसा निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, एटीट्यूड वैसा नहीं रख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमको ये सब सीखना, बहुत प्यारी राइटिंग है रस्किन बॉन्ड की, आप देख सकते हैं स्टूडेंट।
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अरुण जोशी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोग सोच सकते हैं आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल दी सिलेबस, ऑल दी राइटर्स। our unit 6 is going on and we are studying English in India and major Indian English writers, है ना। तो बहुत व्यवस्थित तरीके से भी आर वन थिंग आई विल टेल यू, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स आपको पीपीटी में भी और उससे ज्यादा मैं आपको जो है पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके रिवाइज करके देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ and I would like to request you please take a print out of these PDFs and revise that, है ना। मेक योर ओन नोट्स आल्सो, एक बढ़िया शानदार तरीके से आप पीडीएफ निकालें और प्रिंट आउट और उसी में कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ नई चीजें ऐड करना है तो आप उसको कर सकते हैं। यस, गॉट इट, यस आर नो? सो आई थिंक ओनली, चलिए आगे बढ़ते हैं, अरुण जोशी जी के बारे में बात करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट अरुण जोशी। चलिए, so as far as Arun Joshi is concerned, so student Arun Joshi was born in Varanasi, है ना। वाराणसी you know very well, ठीक है। Varanasi is very famous because our current our Prime Minister Narendra Modi ji is MP, or you can say member of Parliament या सांसद, है ना, जो है वो वाराणसी से सांसद है, आप जानते हैं। He attended schools in India as well as in the United States, ठीक है। आप देख सकते हैं अरुण जोशी जी ने इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपनी स्कूलिंग की है। He is well known for novels The Strange Case of Billy Vishwas and The Apprentice, one of the most important novels written by Arun Joshi. He is well known for his novels The Strange Case of Billy Vishwas and The Apprentice. Okay, or he won the Sahitya Academy Award for his novel The Last Labyrinth. The Last Labyrinth, which was published in 1982. तो ये इसके लिए इनको इनके देखिए तीन चीजें तो आपको बिल्कुल याद रखना है, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिल्ली विश्वास एंड द अप्रेंटिस, एंड वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवेल द लास्ट लैबिरिंथ, ठीक है। और उसके बाद में बात करें इनके कुछ और नॉवेल्स की, तो द फॉरेनर विच वाज पब्लिश्ड इन 1969, मेन कैरेक्टर है सिंधी ओबेराय। द फॉरेनर जो मेन कैरेक्टर है सिंधी ओबेराय। द स्ट्रेंज केस ऑफ बिल्ली विश्वास, इसमें मेन कैरेक्टर है बिल्ली विश्वास एंड मीना चटर्जी, वाइफ ऑफ बिल्ली, है ना, ये दो जो है कैरेक्टर है। देन द अप्रेंटिस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1974, इसके मेन कैरेक्टर है रतन रेटर, द अप्रेंटिस, ठीक है। और द लास्ट लेबरिंथ, ये द मेन कैरेक्टर इसमें सोम भास्कर, और द सिटी एंड द रिवर। सो दीज आर द मेजर वर्क्स रिटन बाय अरुण जोशी। स्टूडेंट, इतनी चीजें हैं, इसमें आप डिटेल में भी जा सकते हैं, यू कैन गो थ्रू द इन डिटेल, ठीक है। यस आर नो? चलिए, सो नाउ लेट अस मूव अहेड अबाउट जीवी देसानी। स्टूडेंट, जीवी देसानी, है ना, जीवी देसानी, ही वाज बोर्न इन 1909 एंड डाइड इन 2000। ध्यान रखना आपको, जीवी देसानी, इनका पूरा नाम है गोविंददास विष्णुदास देसानी। एक्चुअली ही वाज बोर्न इन केन्या, तो इसलिए उनको केन्या बोर्न या केन्या पोएट, है ना। ब्रिटिश एजुकेटेड एंड इंडियन राइटर एंड बुद्धिस्ट फिलोसोफर। Student C, he was basically born in Kenya and he got education in Britain, an Indian writer and Buddhist philosopher. He is famous for his novel All About H. Hatter, ठीक है, H. Hatter। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये H किसके लिए स्टैंड कर रहा है ना, आगे हम देखेंगे। H यहाँ पर हिंदुस्तानी, है ना, H मीन्स हिंदुस्तानी। तो ऑल अबाउट एज हेटर 1948 में ये नॉवेल आया है, बहुत फेमस है। यू कैन गो थ्रू द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल विच इज कंसिडर्ड अ फाइन एग्जांपल ऑफ मिड सेंचुरी मॉडर्निज्म, ठीक है। ऑल अबाउट एज हेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टीएस इलियट, है ना, एंड ईएम फॉस्टर। Eliot described its imagery as often terrifying, effective, and Foster wrote, "It keeps evoking heights above the summiticity
ऑफ नॉर्मल अचीवमेंट्स। तो ये बातें टीएस इलियट और ईएम फॉस्टर ने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन में या क्रिटिसिज्म में कहा है। ऑल अबाउट एच हेटर के बारे में बहुत फेमस है, आप इसके स्टोरी में जा सकते हैं। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी पॉलिसीज। अच्छा, क्रिटिक का मतलब यहाँ आलोचक ही होना ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपर टिप्पणी करना सकारात्मक भी हो सकता है। थोड़ा सा हम ब्रीफली हम इसके बारे में बात करें स्टूडेंट, ऑल अबाउट एच हेटर के बारे में। तो ये एच यहाँ पर स्टैंड करा 1948 में आया है। एच का मतलब यहाँ पर है, एच हेटर स्टैंड फॉर हिंदुस्तानी हेटर, या एच क्या है, हिंदुस्तानी। हेट, हेट से हेटर बना है, हेट मीन्स घृणा, नफरत, तो हेट से हेटर बना है। अब यहाँ पर देखिए, द नॉवेल इज अबाउट एडवेंचर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट एच हेटर हु सर्च फॉर विजडम एंड इनलाइटनमेंट। ठीक है, और ये देखिए, कोई भी वर्क जो है सर्च कर रहा है, एडवेंचर है, या जो है हम बात कर रहे हैं कि एक प्लेस से प्लेस टू प्लेस मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, बांग्लादेश से कहीं और जा रहा है ना, ब्रिटेन जा रहा है, लंदन जा रहा है, तो ऐसे एडवेंचरस नॉवेल को स्टूडेंट पिकारेस्क्यू नॉवेल कहते हैं, है ना। ऐसे एडवेंचरस नॉवेल को पिकारेस्क्यू नॉवेल कहते हैं, रिमेंबर। तो जो है यहाँ पर एच हेटर जो है वो अपने विजडम को, इनलाइटनमेंट को खोज में निकलता है। द बॉय एच हेटर वाज एडॉप्टेड बाय एन इंग्लिश मिशनरी सोसाइटी, है ना। ये जो एच हेटर है इसको इंग्लिश मिशनरी सोसाइटी के द्वारा एडॉप्ट किया गया है। फिर हम बात करें, दिस नॉवेल आल्सो एक्टेड एज एन इन्फ्लुएंस ऑन सलमान रश्दी, है ना। इन्फ्लुएंस ऑन सलमान रश्दी, सलमान रश्दी के ऊपर भी इस नॉवेल ने इन्फ्लुएंस डाला है, प्रभाव डाला है, इन फॉर्जिंग अ न्यू नैरेटिव स्टाइल इन इंग्लिश, ठीक है। तो सलमान रश्दी के ऊपर भी प्रभाव डाला है ये जो नॉवेल है इसने। द नेम हेटर इज पिन पॉइंटिंग हिज हेड दैट इज वेरी लार्ज फॉर हिम विच सजेस्ट हिज एंग्लो इंडियन एनवायरनमेंट। हेटर कैन बी अ मार्क ऑफ बोथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वैल्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैस्कुलाइन या फेमिनाइन वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है हेटर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये बेसिकली आप इसमें इतना जरूर ध्यान रखें जीवी देसानी के बारे में, गोविंद दास विष्णुदास देसानी नाम है इनका पूरा। और जो है ऑल अबाउट एच हेटर जिनका फेमस वर्क है, एच स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान वाला हेटर, ठीक है ना, हिंदुस्तान वाला हेटर, ना सॉरी मैंने हिंदुस्तानी बोल गया था, हिंदुस्तान वाला, ठीक है, हिंदुस्तान वाला हेटर। और फिर हम बात करेंगे सलमान रश्दी की, बहुत ज्यादा इनके बारे में है। और आपको पता होगा लगभग 4 से महीने पहले, आई थिंक लगभग बिफोर 6 months, ही वाज अटैक्ड, ही वाज, यू कैन से अटैक्ड बाय एंड यू कैन से पर्सन, है ना, अटैक्ड, इनके ऊपर अभी अभी आक्रमण हुआ है। आपने देखा होगा अमेरिका में एक फंक्शन में थे, वहां पर सलमान रश्दी के ऊपर आक्रमण हुआ था, और अभी इन्होंने जो इनकी लेफ्ट राइट आई है वो लगभग खो चुके हैं, ठीक है, इनकी जो राइट आई है वो खो चुके हैं। तो सलमान रश्दी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। सो इज अ ब्रिटिश, सलमान रश्दी, ठीक है, हम यहाँ पर बात करें तो ये जो ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट है और एनएसएइस्ट है, नॉवेलिस्ट भी है और एनएसएइस्ट भी है। ही वाज बोर्न इन 19 जून 1947 इन मुंबई, मुंबई में इनका जन्म हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब क्यों इनके ऊपर आक्रमण हुआ है, क्या कंट्रोवर्शियल रहा है सलमान रश्दी के बारे में आगे देखते हैं। इनका फेमस नॉवेल है स्टूडेंट मिडनाइट्स चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट मध्य रात्रि के बच्चे, 1981 में, और इसके लिए इनको बुकर प्राइज इन 1981 में मिला है। 1981 में ही इनको जो है बुकर प्राइज मिला है। मोस्ट ऑफ हिज फिक्शंस आर सेट इन द इंडियन सबकंटिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में ही इनके फिक्शन जो है बहुत ज्यादा सेट हुए हैं। इन्होंने जो भी लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है, इंडियन सबकंटिनेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। गॉट इट स्टूडेंट। अब देख सकते हैं मोस्ट ऑफ हिज फिक्शन, ही सेड टू कंबाइन मैजिकल रियलिज्म एंड हिस्टोरिक फिक्शन। मैजिकल रियलिज्म का मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, जो है हम इस मिडनाइट चिल्ड्रन में एक जादू, या यूं कहें कि एक अद्भुत मैजिक, यूं कहें कि एक अलग ही एक पावर व्यक्ति के पास में आती है, उस बारे में इन्होंने लिखा है। अब देखिए द सैटेनिक वर्सेस, इनका
एक वर्क है विच वाज पब्लिश्ड इन 1988 वाज द सेंटर ऑफ मेजर कंट्रोवर्सी। ये इसी के कारण जो है सैटेनिक वर्सेस के कारण ही जो है इनके ऊपर अटैक होता है। प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स इन सेवरल कंट्रीज, है ना। इनको जो है एक्चुअली द सैटेनिक वर्सेस में इन्होंने क्या है, इस्लाम या जो इस्लाम को मानने वाले हैं, अल्लाह है या जो भी है, मोहम्मद है, मोहम्मद जी हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं इन्होंने टिप्पणी करी थी। तो इसको लेकर के जो मुस्लिम समाज है, इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इनसे नाराज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनको एक डेथ यानी इनकी मृत्यु को लेकर भी एक फतवा जारी किया गया है, इनको धमकाया गया है। और फारिज असैसिनेशन इशूड बाय आयतुल्लाह रहमान, है ना, खुलेमी, ये जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने भी एक फतवा जारी किया था कि इनका सर धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है, सलमान रश्दी को, और फिलहाल में ये अमेरिका में भी है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है और वो अभी अमेरिका में भी है। गॉट इट। तो इसलिए जो है द सैटेनिक वर्सेस बहुत विवादित कंट्रोवर्शियल इनका नॉवेल है। उसके बारे में बात करें स्टूडेंट तो 2007 में, जून इन 2007, जून 2007 क्वीन एलिजाबेथ सेकंड नाइटेड हिम, है ना, हिम फॉर हिज सर्विसेज टू लिटरेचर। ठीक है, और अभी जो है वो 2000 से क्या है, सिंस 2000 ही इज लिविंग इन यूएसए। सन 2000 से वो यूएसए में ही रह रहे हैं और इनको नाइटेड या जैसे नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी भारत में, आपको याद हो। ठीक है, तो ये दिया गया है। एंड let us discuss. In 2012 he published Joseph Antum, a memoir in account of his life in the wake of the controversy over the satanic verse. With this name he was hiding his fear of fatwa. ठीक है, तो जोसेफ एंथम एक जो सैटेनिक वर्सेस जो इनका विवादित रहा है, इसको लेकर इसके उस कंट्रोवर्सी के ऊपर ही उसी को लेकर के इन्होंने ये वर्क लिखा है, जोसेफ एंथम अ मेमोयर। देन रश्दीज फर्स्ट नॉवेल ग्रीमस, ये इनका पहला नॉवेल है 1975 में। अ पार्ट साइंस फिक्शन टेल वाज जनरली इग्नोर्ड बाय द पब्लिक एंड लिटरेरी क्रिटिक, बहुत ज्यादा इनको पब्लिसिटी नहीं मिली थी ग्रीमस को, लेकिन आपको याद रखना है। इसके बारे में हम बात करें स्टूडेंट, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अब देखिए यहाँ पर, है ना, ये जो मैकाले हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थॉमस बेबिंगटन मैकाले, द राइटर ऑफ द इनफेमस मिनट इन you can say famous minute on Indian education, finds a mention in Rajdees that moon more last sight। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इनका जो है वर्क जो है इनका प्रभाव देखने को मिलता है। रश्दी का जो वर्क है द मूर लास्ट साइन, उसमें जो है मेकाले का ये जो मिनट आया था उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए उनका जन्म भी खुद जो है 1947 में हुआ है। अभी हम थोड़ी सी चर्चा मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में करेंगे स्टूडेंट। हिज नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन raised him to literary nobility for which he won the बुकर प्राइज। इसको लेकर के मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर इनको बुकर प्राइज भी मिला है। ठीक है, इन दिस नॉवेल द कैरेक्टर सलीम सिनाई, ये देखिए हम पढ़ते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में, तो हैज बीन कंपेयर्ड टू रश्दी बट रश्दी रिफ्यूज टू अबाउट इट। जो सलीम सिनाई है इसका कैरेक्टर मिडनाइट चिल्ड्रन का, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि रश्दी ही वो अपने आप को वहां पर कंसिडर करते हैं, लेकिन रश्दी रिफ्यूज करते हैं। अब चूंकि उनका जन्म जाते कि 47 में हुआ है। मिडनाइट चिल्ड्रन का मतलब मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो वो बच्चे जिनका जन्म जो है 15 अगस्त 1947 की रात को हुआ, देश, है ना, 14 और 15 अगस्त के बीच में रात को, मध्य रात्रि को हुआ है। अब सोचिए, है ना, वो बच्चे जिनका जन्म कब हो रहा है, रात्रि, मध्य रात्रि को। ठीक है, तो रश्दी आप देख सकते वाज रॉट शेम, अगला इनका वर्क है शेम 1983, in which he depicted the political turmoil in Pakistan, basing his characters on Zulfikar Ali Bhutto and General Ziaul Haq। जुल्फिकार अली भुट्टो की, है ना, ये जो डेथ हो जाती है, इनको लेकर के कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा है। देखिए इंडियन सब कंटिनेंट इनका जो है सेटिंग रही है ज्यादातर, तो ये सब उसी में आ रहा है। He wrote a non-fiction about Nicaragua in 1987 called The Jaguar Smile। निकारागुआ के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, ये नॉन फिक्शन है। इट हैज अ पॉलिटिकल फोकस एंड इज बेस्ड ऑन हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्च एट द सीन ऑफ सांदिनिस्ता पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स है।
Rushdie has published many short stories including those collected in East West, ये East West ये इनकी स्टोरी है, and The Moor's Last Sigh, a family epic ranging over some 100 years of India's history and was published in 1995. ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी है इनके बारे में, इन्होंने लिखी है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट विच वाज पब्लिश्ड इन 1999 प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न रॉक म्यूजिक। ठीक है, जो मॉडर्न रॉक म्यूजिक है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक नया अल्टरनेटिव प्रस्तुत करती है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, हिज नॉवेल लूका, इनका एक और एंड द फायर, लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ वाज पब्लिश्ड इन 2010। रिसेंटली आप कह सकते हैं 13 साल पहले ही पब्लिश हुआ है लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ। फिर हम बात करें यहाँ पर सलमान रश्दी के बारे में, तो ही इज द फाउंडर ऑफ पेन वर्ल्ड वॉइस फेस्टिवल। ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ हेराडाइन एथिस्ट इन अ इंटरव्यू, हेराडाइल एथिस्ट अपने आप को कहते हैं ये। मोस्ट ऑफ रश्दीज बुक्स आर रिटन इन द स्टाइल ऑफ मैजिक रियलिज्म। मैजिक मतलब अभी हम पढ़ेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन, एक अजीब सी शक्ति उनके कैरेक्टर्स में होती है। किसी के पास में सुनने की शक्ति है, किसी के पास में दूसरे का माइंड पढ़ने की शक्ति है, जैसे बहुत सारे दावे करते हैं लोग दूसरों का दिमाग पढ़ने की, है ना, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैजिकल रियलिज्म को इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैजिक भी है और जो कहानी होती है वो रियलिस्टिक से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। सलमान रश्दी कॉइंड द टर्म चटनीफिकेशन, पूछा गया है चटनीफिकेशन, है ना, इन द नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन चटनीफिकेशन मींस, है ना, ये चटनीफिकेशन न्यू वर्ड है। इट वाज कॉइंड, कॉइंड मतलब इसको बनाया गया है, इजाद किया गया है बाय सलमान रश्दी। आपको ध्यान रखना है, इट वाज यूज्ड इन इंग्लिश नॉवेल स्टूडेंट, मिडनाइट चिल्ड्रन में इसका यूज हुआ है। आप सोच सकते हैं, यानी जो हिंदी वर्ड है, हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश में बना दिया, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, चटनीफिकेशन का मतलब होता है, इट मींस transformation of English having an additional connotation of making the language used in the novel tangy and more flavorsome and exciting। कुल मिला के इसका उद्देश्य है जो इंग्लिश है उसमें एक दूसरी लैंग्वेज का जो कनोटेशन है, मीनिंग है, ठीक है, तो उसको जो है उसमें बता के एक नया मीनिंग इजाद करना, बताना। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें स्टूडेंट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलमान रश्दीज राइटिंग इज यूज ऑफ fragmented narrative structure with multiple shifts in consciousness, chronology and location। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं main characteristics of Rushdie's writing is use of fragmented narrative structures with multiple shifts in consciousness, chronology and location। अब यहाँ पर जीवी देसानी का भी नाम आता है। ऑल अबाउट एच हेटर्स एक्टेड एज एन इन्फ्लुएंस ऑन सलमान रश्दी इन फॉर्जिंग अ न्यू नैरेटिव स्टाइल। जैसा कि जीवी देसानी साहब ने एक वर्क लिखा है ऑल अबाउट एच हेटर, इसका प्रभाव भी सलमान रश्दी के जो नैरेटिव स्टाइल इन इंग्लिश है उसके ऊपर रहा है। इन द बुक हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, रश्दी alludes to गोपी एंड बाघा, द टू प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम सत्यजीत रे फिल्म, है ना, गोपी ज्ञान। बाघा बाइन इज क्रिएटेड बाय राज यू कैन ग्रैंडफादर उपेंद्र किशोर राय चौधरी। ठीक है, तो ये आप स्टोरी देख सकते हैं, ये बाद में फिल्म भी आई है गोपी ज्ञान, इसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। कुछ मेजर वर्क्स की हम चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट अस हैव कन्वर्सेशन ऑन मेजर वर्क्स रिटन बाय सलमान रश्दी। तो इनका ग्रीमस बहुत ज्यादा डेब्यूट नॉवेल इनका ये 1975 में पब्लिश हुआ है, और सूफी पोयम है, 21st century सूफी पोयम। इट इज साइंस फिक्शन स्टूडेंट, बेस्ड ऑन his debut novel based on 12th century सूफी पोयम, सूफी पोयम के ऊपर बेस्ड है। गॉट इट, सूफी पोयम के ऊपर बेस्ड है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जब हम मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करें, ब्रीफली लेट अस डिस्कस। स्टूडेंट उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनका जन्म देश की आजादी यानी 14 से 15 अगस्त 1947 के दौरान मध्य रात्रि को हुआ है उनकी। तो ऐसे बच्चे कुछ हैं, 1001 के आसपास है बच्चे, है ना, 1001 बच्चे हैं जो मिडनाइट चिल्ड्रन है। उनके पास में स्पेशल पावर है, दे हैव स्पेशल पावर, है ना, उनके पास में स्पेशल पावर है, तो आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट डील्स विद इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म टू इंडिपेंडेंस। ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन है स्टूडेंट, ये भारत का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखें, जो भारत है उसका ब्रिटेन से आजादी भारत को मिल रही है, भारत ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से मुक्त हो रहा है, आजाद हो रहा है, और भारत का एक तरीके से दूसरी ओर विभाजन भी हो रहा है। दो बातें हो रही है, भारत का विभाजन हो रहा है भारत पाकिस्तान के रूप में, और दो है बांग्लादेश भी, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरी तरफ जो है भारत आजाद भी हो रहा है। तो उस समय के सिचुएशन को, उस समय के मिडनाइट मध्य रात्रि में जो बच्चे जन्मे हैं उनको लेकर के ये नॉवेल है। फॉर दिस नॉवेल ही वॉन द बुकर प्राइज, इनको मिला है बुकर प्राइज इसी नॉवेल के लिए, एंड द जेम्स टाइट ब्लैक मेमोराइज प्राइज इन 1981। ये फॉर दिस ही आल्सो गॉट बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज, बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज भी इनको मिला है। ठीक है, अब स्टोरी के बारे में थोड़ा सा देखिए तो स्टोरी इज टोल्ड बाय इट्स चीफ प्रोटैगनिस्ट सलीम सिनाई। रिमेंबर द चीफ प्रोटैगनिस्ट, द चीफ कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज सलीम सिनाई। इट स्टार्ट्स विथ, कैसे स्टार्ट हो रहा है ये आप देख सकते हैं, आई वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ बॉम्बे वंस अपॉन अ टाइम। देखिए एक समय की बात है, मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ था। ये लाइनें हैं स्टूडेंट, ये लाइनें हैं मिडनाइट चिल्ड्रन की, है ना। आई वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ बॉम्बे वंस अपॉन अ टाइम। अब एक मूवी भी आई है अजय देवगन साहब की, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप कोटेशन आप देख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। तो यहाँ पर ये भी इस तरीके से सलीम सिनाइस के कैरेक्टर है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ली हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। द जेनर ऑफ द नॉवेल इज मैजिक रियलिज्म एंड हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। ठीक है, दो चीजें, मैजिक रियलिज्म यानी इसमें कहीं ना कहीं जादुई शक्ति, जादुई शक्ति है। रियलिज्म मतलब कहीं ना कहीं 1947 की जो मध्य रात्रि आजादी के समय की वास्तविकता को भी ये बताता है, और जो मिडनाइट चिल्ड्रन है उनमें कोई ना कोई मैजिकल पावर है उसको भी बताता है। दूसरा हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन है, क्योंकि ये हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, तो हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन की भी बात कर रहा है। थोड़ा सा हम देखें तो द जेनर ऑफ द नॉवेल इज मैजिकल रियलिज्म, हिस्टोरियोग्राफी हो गया। सलीम सिन्हा इज बोर्न एट द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जैक्टली एट मिडनाइट। मतलब आप जो सलीम सिन्हाई है उसका एक उस क्षण उस समय जन्म हुआ जब भारत एग्जैक्टली क्या है, मिडनाइट को, मध्य रात्रि को आजाद हुआ। यानी भारत आजाद हो रहा है इसी मध्य रात्रि को जो है सलीम सिन्हाई का भी जन्म होता है। ही वॉज बोर्न विथ टेलीपैथिक पावर्स, मैंने कहा ना बहुत ही उसकी एक अजीब पावर्स है, एज वेल एज एन इनॉर्मस कंसिस्टेंटली ड्रिपिंग नोज, टेलीपैथिक पावर्स, और विद एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल। देखिए क्या क्या पावर है इसके पास, टेलीपैथिक पावर है, एनॉर्मस एंड कंसिस्टेंटली ड्रिपिंग नोज है, सूंघने की शक्ति, और एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है स्टूडेंट, टेलीपैथिक पावर्स का मतलब ये है कि वो जैसे एक बार क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसी गलती कर बैठता है तो उसकी मम्मा उसको एक सजा देती है कि आज आप दिन भर चुप रहो, यू हैव टू बी साइलेंट टुडे एंड डोंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। तो दिन भर उसको मम्मी की सजा के कारण सलीम सिन्हाई को चुप रहना पड़ता है, या यूं कहे कि मौन धारण कर लेता है। तो उस समय उसको रियलाइज होता है जब वो मौन धारण किया है, तो फिर अंदर की आवाज को सुनता है स्टूडेंट, वो सलीम सिन्हाई अपने अंदर की आवाज को सुनता है और घर को वाले को बताता है। यानी उसके अंदर जो है दूसरों के विचारों को, दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की शक्ति है। इसमें जैसे यूट्यूब पर आजकल सुहानी शाह छाई हुई है ना, सुहानी शाह है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो दूसरों की भावनाओं को, विचारों को, है ना, पढ़ने का जैसे आप देखते हैं कि पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके की इसमें भी शक्ति है। और फिर बाद में जो है इनके इसके अंदर एक सूंघने की भी शक्ति है, अद्भुत इनका जो नाक है वो भी सूंघ, तो इस तरीके से एक अधिक मैजिकल पावर इनके पास। सलीम यूजिंग हिज टेलीपैथिक पावर्स, ठीक है, assembles a midnight children's conference, all children who were born between 12 and 1 on the day of India's independence। ठीक है, अपनी जो ये टेलीपैथिक पावर है, सोचने की, पहचानने की, इमेजिन करने की, तो इसके माध्यम से उन 1001 बच्चों को क्या है ये पता कर लेता है, 1001 बच्चों के बारे में कि किसका किसका जन्म 12 से 1 PM 1 AM के बीच में हुआ है।
उनका फिर क्या करता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। एंड ऑल सच चिल्ड्रन वर अवार्डेड विद स्पेशल गिफ्ट्स, जैसे मैंने कहा ना कि ऑल सच चिल्ड्रन, है ना, हु आर बोर्न बिटवीन 12 and 1 on the day of India's independence, all such children were awarded with special gift of telepathic पावर, कुछ न कुछ इनके पास में एक स्पेशल पावर मिली थी। जिन बच्चों का जन्म 12 से बच्चे के बीच में भारत देश आजाद हो रहा था उस समय हुआ था, तो उस समय क्या इनको स्पेशल गिफ्ट मिला है। अब यहाँ पर क्या है, शिवा जो है ऑफ द नीज, उसको घुटनों में स्पेशल पावर है। सलीम नेमेसिस एंड पार्वती called Parvati the witch are two of these children with notable gifts and roles in Salim's story। ये उसमें एक शिवा है और पार्वती है। स्टूडेंट ये शिवा और सलीम क्या है, ये जब बॉर्न होते हैं तब एक्सचेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट बड़ी कहानी है, मैं अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो ज्यादा टाइम टेकिंग है ना। इनके पेरेंट्स, एक्चुअल पेरेंट्स बदल जाते हैं, है ना। जो दाई होती है वो जो है जो रियल पेरेंट्स होते हैं इनको एक्सचेंज कर देती है वहां पर, है ना। उसी समय इन दोनों का जन्म होता है, लेकिन एक्सचेंज कर देते हैं, तो ठीक है। सलीम के रियल फादर कहीं और होते हैं। Salim later becomes involved with the Indira Gandhi's proclaimed emergency and her son Sanjay's cleansing of the Jama Masjid slum। For a time, Salim is held as a political prisoner। इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने काम किया था, और संजय गांधी का ये जो अभियान था इसके ऊपर काम किया था, तो इनको क्या है, पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में इनको कैद कर दिया जाता है। द इमरजेंसी सिग्नल्स द एंड ऑफ द पोटेंसी ऑफ midnight children and there is little left for Salim, है ना, यहाँ पर Salim to do but pick up the few pieces for his life he may still find and write the chronological that encompasses both his personal history and that of his still young nation। स्टूडेंट बाद में ऐसा यहाँ पर कहानी में ये भी है कि जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि सलीम जो है इस तरीके की, सलीम के पास पावर है और ऐसे स्पेशल पावर वाले बच्चों को पहचानता है, तो इंदिरा गांधी जी इनको बुलाती है, ठीक है ना, और इसके ऊपर फोर्स करती है कि हमें वो ऐसे बच्चों के बारे में बताएं। तो ये मैजिकल पावर को लेकर के हैं, और लगभग ऐसे कितने बच्चे, प्रश्न पूछा जा सकता है। मिडनाइट चिल्ड्रन 1001 इन द नॉवेल। और सलीम सिनाई, ठीक है, डबल है, सलीम सिनाई रिकाउंट्स ओरली टू हिज वाइफ टू बी पद्मा, ठीक है। एंड द लेक्सिकल चटनिफिकेशन ऑफ रजनी इज कॉल्ड बिरियानाइजेशन चटनिफिकेशन बाय इंडियन पोएट आगा शहीद अली, ठीक है। तो ये कुछ नए वर्ड इन्होंने क्रिएट किए हैं, आपको ध्यान रखना है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड टुडे। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड स्टूडेंट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो वी स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन फ्रॉम अरुंधति राय। वी डिस्कस्ड अबाउट अरुंधति राय, Sujana Arundhati Roy and her famous novel God of Small Things won main Booker Prize, और साहित्य अकादमी अवार्ड she received in 2006। और देन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो बहुत फेमस वर्क है इनका, बहुत छोटी छोटी बातें कैसे लोगों की जिंदगी को और व्यवहार को अफेक्ट करती है। इसकी स्टोरी आयमेनन केरला में पब्लिश सेट होती है। राहेल और एस्था जो है, इसके एस्था जो है फेमस इसके कैरेक्टर हैं, अम्मू और बाबा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, द स्टोरी जो है इस तरीके से चलती है। जो राहेल है वो अपने प्रेम को, सच्चे प्रेम को ढूंढने में लगी रहती, लेकिन उसको नहीं मिलता है, और अंततः जो उसके अपने भाई जो एस्था है उसके साथ में उसको अपना असली प्रेम मिलता है, ठीक है। वेलुथा अनटचेबल बॉय है व्हिच ही वाज यू कैन से किल्ड बाय द पुलिस, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। रस्किन बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करें तो पद्मश्री, पद्म भूषण, ही रिसीव्ड पद्मश्री एंड पद्म भूषण, और बेसिकली ही हैज रिटन मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रंस। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। और फिर अरुण जोशी जी के बारे में हमने देखा, जीवी देसानी, और फिर सलमान रश्दी। स्टूडेंट thus now we have come to the end, and once again I would like to tell you thank you student। So please if you like our content, if you like our teaching, please share among your friends, and once again I would like to request you, please share our content, share our teachings, our filler form app। Filler form app is one of the most popular app in the field of UGC NET JRF। एंड आपको बता दें फिलर फॉर्म ऐप केवल और केवल यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए डेडिकेटेड है।
फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, सारे सेकंड पेपर्स का आपको जो है कंटेंट और टीचर आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है, लाइव क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, एवरीथिंग यू फाइंड हियर, एवरीथिंग you get here. Okay, so once again thank you very much, and that's all about the class today. Thank you. Or now we will meet on Monday in next our class, है ना? Thank you very much. Thank you.